Assalamualaikum students. Again we are here with chapter number 15th, Structure of Atoms and Nuclei of Maharashtra Board Syllabus for class 12th. So today's our topic is energy level diagram of hydrogen atom. Before going towards our main topic, we will see what are these energy levels and how they are formed. When an hydrogen gas is heated in a discharge tube by providing the electricity, these hydrogen gas atoms are heated and they emit the radiations of few colors of line spectrum, different wavelengths. Broadly, there are two types of energy bands. They are the valence band or the lower energy band. अब ये valence band क्या है? In this band, the electron just revolve around the nucleus, means here the role of the electron is only revolving and these electron does not conduct electricity. Here there is no conductivity. Now the second energy band is the conduction band or the higher energy band. If we provide the extra energy to the atom, here the atom absorbs extra energy and it becomes excited and moves to the higher orbit where there is a less force of attraction from the nucleus. So we can easily remove the electron from the surface. यहाँ पर ऑर्बिट की साइज बढ़ जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब आप उसको आसानी से फ्री कर सकते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टिविटी करने में या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प करेंगे. Now the definition for the ground state. When the electron is in the first orbit जहाँ पर n की वैल्यू 1 होती है और वहाँ पर सबसे कम एनर्जी होती है, that state is called as the ground state or the normal state of the atom. Now the excited state. When the electron absorbs the energy and jumps from lower orbit to the higher orbit. जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करता है तो वो लोअर ऑर्बिट से अब हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, मतलब वो हायर और वैल्यूज ऑफ एन में जंप करेगा. सो ये जो हायर वैल्यूज ऑफ एनर्जी है इसे कहते हैं हम एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम. जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करता है, जब वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला गया, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, आफ्टर सम टाइम दीज इलेक्ट्रॉन रिलीजेस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन and compacts to the lower orbit. This process is called as transition of the electron. Now, this diagram shows the different levels of the atom, that is the energy level diagram of hydrogen atom. Okay, so now the definition for energy level diagram is a diagram showing the energy of the electron in the hydrogen atom in various orbits is known as energy level diagram. For hydrogen atom, we know that Z is equals to 1. So therefore, for n is equals to 1, मतलब first orbit के लिए हम देखते हैं कि energy of the electron ground state में कितनी होती है. We know that the energy of the electron in the ground state where n is equals to 1 and Z is equals to 1. So therefore E1 is equals to minus of 13.6 electron volts. This we have learned in our previous class. ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में. Now we are seeing the energy of the excited state. The energy for n is equals to 2. We know the general formula En is equals to. अब हम यहाँ पर n is equals to 2 रख कर देखेंगे कि कितनी एनर्जी यहाँ पर निकलेगी. Now for n is equals to 2 and we know that z is equals to 1. यहाँ n की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करिए. E1 तो कांस्टेंट है, दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. z की वैल्यू 1 है, n की जगह पर आपको 2 रखना है. अब हम E2 निकाल रहे हैं, दैट इज एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट. दिस इक्वल्स टू माइनस 13.6 जो E1 की वैल्यू है 1 से मल्टीप्लाई होगी, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर विल बी 4. तो जब हम 13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू आएंगी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो देयरफॉर द वैल्यू फॉर E2 इज minus 3.4 electron volt.
energy for second orbit. Now for n is equals to 3, the general formula we know this, En is equals to E1 z square upon n square. अब आप n की जगह पे यहाँ पर 3 रखेंगे और आपको पता है कि E1 की वैल्यू है -13.6 एंड वी नो Z is also equals to 1 for hydrogen atom. So therefore -13.6 into 1 will be -13.6 divided by 3 square होता है 9. तो जब हम -13.6 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है -1.51 electron volt. So this is the energy for the third orbit. Now we will be going for energy of n is equals to infinity. n की जगह पे आपको रखना है infinity. You know that E1 is -13.6 electron volt, right? So Z is equals to 1. ठीक है. Now the n square, that is the infinity square, will be infinity, and anything multiplied by infinity will gives you 0. Energy of the last orbit. So this is the energy diagram. This shows that as n increases, the energy level come closer and closer. The energy increases in the negative value and reaches to a limiting value, that is 0. जैसा यहाँ n की वैल्यू बढ़ते चली जाती है, मतलब ऑर्बिट्स अगर बढ़ते चले जाते हैं तो यहाँ पर एनर्जी भी बढ़ते चले जाएंगी मगर नेगेटिव वैल्यू में, और ये जो एनर्जी लेवल से एक दूसरे के करीब आते चले जाएंगे. और n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी विल कम्स टू 0. यहाँ पर एटम अब आयोनाइज्ड हो जाएगा. आयोनाइज्ड का मतलब ये है कि आप अब एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल सकते हैं, एज दे आर नाउ फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. Now the excitation energy, that is the energy required to take the electron from the ground state to the excited state, is called as excitation energy. For example, if this is the nucleus and the electron is revolving around the nucleus, right? अब यहाँ अगर वो electron है, आप इसको अब एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ये ग्राउंड स्टेट से सीधे से अब एक्साइटेड स्टेट में, मतलब ऊपर के हायर ऑर्बिट में वो जंप करेगा. आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी दिए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अब हायर ऑर्बिट में यहाँ पर जंप करेगा. दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो ये एनर्जी जो आप यहाँ पर दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जा रही है, इसे कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी. नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम द मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी इज अ मिनिमम एक्साइटेशन. ये ग्राउंड स्टेट है, इसके बाद पहली एक्साइटेड, यहाँ n इज इक्वल्स टू 1 हो गया, इसके यहाँ है n इज इक्वल्स टू 2, तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट हो गई. दिस इज द ग्राउंड स्टेट. और हमारी पहली एक्साइटेशन स्टेट कौन सी रहेंगी? n इज इक्वल्स टू 2. तो फॉर हाइड्रोजन एटम द मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी इज, देयरफॉर this is the general formula, you know this, right? So E1 is equals to -13.6 electron volt and Z is equals to 1 for hydrogen atom. So here E2, that is minimum excitation energy जिसे कहते हैं हम, is equals to -13.6 E1 की जगह पर, Z की जगह पर 1, N के प्लेस पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर. So here -13.6 electron volt upon 4. This equals to -3.4 electron volt. So here E2 is equals to -3.4 electron volt. This is the first excitation energy. Now this first excitation energy, now after getting the first excited state, the first excitation energy is nothing but the difference between energy of second orbit minus energy of the first orbit. हम अभी देखे हैं energy of second orbit is -3.4 electron volt minus of, again E1 you know it is -13.6 electron volt, right? So now you will get -3.4 as it is, minus into minus will be plus 13.6 electron volt. This equals to, इन दोनों को
माइनस करने के बाद 13.6 में से -3.4 निकालने के बाद आपको आंसर मिलता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज द E2 माइनस E1 जिसे कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर ऑर्बिट में जंप कर चुका है. ये है पहला हायर ऑर्बिट. n इज इक्वल्स टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल्स टू 2 ये है एक्साइटेड स्टेट, और इन दोनों का डिफरेंस को कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन. नाउ द सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी n is equals to 3, right? Now En is equals to E1 z square upon n square. This equals to minus 1.15 electron volt. So here E3 is equals to minus 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये है आपकी एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट. अब आपको निकालना है सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी. ये है आपका ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल्स टू 1. ये है आपका n इज इक्वल्स टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. अब ये है आपका n इज इक्वल्स टू 3 मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी किसका डिफरेंस रहेगा? E3 माइनस ऑफ E1 ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा वो. Second excitation is E3 minus of E1. So now second excitation energy will be E3 minus E1. This equals to E3 आपको अभी मिली है. This is minus 1.51 electron volt. Here minus of E1 की वैल्यू है minus 13.6 electron volt. Now minus 1.51 electron volt minus into minus प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब प्लस 13.6 में से आप माइनस 1.51 को निकालिए, आपको आंसर मिलेगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज योर सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी. सेकेंड एक्साइटेशन के बाद थर्ड एक्साइटेशन E4 माइनस E1. फोर्थ एक्साइटेशन में E5 माइनस E1. Now, ionization is the process of providing external energy to the atom in order to free the electron from the nucleus bound. ऐसा आपको यहाँ पर पता है कि E1 is equals to minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको एक्स्ट्रा प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाना पड़ेगा ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए और आपको एनर्जी जीरो मिले, ताकि फिर आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से न्यूक्लियस के बाउंड से दूर कर सकें. राइट. सो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस के पास ये जो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है ये बहुत टाइटली बाउंड किया हुआ रहता है, जो कि न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच के रखता है. राइट. सो आपको प्लस 13.6 एनर्जी लगाना पड़ेगा ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री करने के लिए. Now ionization energy. Ionization energy is nothing but the minimum amount of energy given to the electron in the ground state to set it free from the nucleus. This energy is called as ionization energy. मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो यहाँ हम उसको जितनी मिनिमम एनर्जी इसको दिए हैं ताकि वो अपने आप को न्यूक्लियस से फ्री कर सके, ये एनर्जी को हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. और ये बाइंडिंग एनर्जी जो है टोटल एनर्जी के ऑपोजिट होती है. दैट इज बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. आपको पता है कि टोटल एनर्जी इज इन माइनस फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म में होती है हमारी टोटल एनर्जी. तो यहाँ माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस. सो देयरफॉर द बाइंडिंग एनर्जी विल बी प्लस टोटल एनर्जी. द डेफिनेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी इज सेम. अगर आपको एग्जाम में बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन आया है तो आप यही लिखेंगे